हैप्पी माइंड्स नंबर, बताओ भाई, हैप्पी माइंड्स नंबर 1171। नमस्ते अक्षय, रुपेश, ओम प्रकाश, नितिन, वंडरफुल टू सी ऑल ऑफ यू। स्वप्निल, कुसुम, शैलेश, सोनाली, सुप्रभात सुप्रभात, नमस्ते नमस्ते, नरेंद्र, प्रशांत, तेज, Navnath. Lovely to see you back one more time. So many of you, your names are on my lips. The moment I have your minds, some of the names just pop out of my mind. You've been there so very regular, so very regular. Thank you for that. And all those who have joined me on YouTube, namaste everybody. Welcome back to Happy Minds number 1171. Namaste, namaste everybody. Lovely to see all of you. And those who have joined me for the first time, you can just type in first and I'll come to know you've joined in for the first time. अगर आप type कर सकते हो first and the city you're from, it will be great. So I'll come to know कौन कहाँ से किसने join किया हुआ है. सुप्रभात, रत्नाली, सचिन, राजेंद्र, सागर, अरविंद, Rajpurohit, Varsha. Well, lovely to see all of you. Varsha Agarwal, first time from Siliguri. Vijay, first time from Pune. Namaste, namaste, everybody. Welcome, welcome to Happy Minds. And we have people, Suprabhat, Neelam, Snehal. Lovely to see all of you. So those who have joined me for the first time, you can just keep on logging in, and then you can just say that first time from so and so place. So जो पहली बार आए हैं, just want to share with you what Happy Minds is. Happy Minds is kind of a satsang. हम लोग मिलते हैं every Saturday morning from 7 till 8, 8:15. And हम लोग पिछले काफी सालों से हम लोग मिलते आए हैं. Now it's online. Last 4 years it has been online, but before that it was offline. And how it starts with meditation. And happy to see so many of you, there in the morning for meditation today. नहीं तो normally क्या होता है, a lot of people log in 5, 7, 5, 7, 10, लेकिन आज काफी लोगों ने you logged in at a time of meditation. So we started with meditation. उसके बाद एक round of success story होता है where some people they share their stories with me, and then I go in for a round of sharing from my side. So ऐसा एक structure होता है. So a lot of people they ask me time and again that why do you conduct Happy Minds? तो जो लोग मुझे जानते हैं पिछले 20, 25, 28 सालों से, या जो पिछले 4, 5 साल से जानते हैं मुझे, so they know why Happy Minds is. But a lot of people because of online जब connect हुए हैं, तो थोड़ा सा एक क्लैरिटी उनको चाहिए होता है कि why Happy Minds. सुबह सुबह क्यों कोई 7 बजे आके सेशन ले लेता है? क्यों? कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा, कोई तो एजेंडा होगा, कुछ तो इनको बेचना होगा, कुछ तो इनको प्रमोट करना होगा. So yes, I do have something to sell. I do have something to promote, and that's the उसको आप मिशन बोल लो, चाहे उसको आप मेरी एक एस्पिरेशन बोल लो. And not only my aspiration or my mission, it's the aspiration of so many who have been there with me, and of course so many जो मेरे साथ नहीं भी हैं, उनका भी aspiration होगा. So मेरा aspiration या मेरा एक motive behind Happy Minds is that can we leave behind when we leave this world, जब हम जाएं इस दुनिया को छोड़ के, can we leave behind some imprints? Can we leave behind some footprints? और मेरे imprints, मेरे footprints मैं चाहता हूँ ऐसे हो कि ये देश थोड़ा और मजबूत बन जाए, थोड़ा और empowered बन जाए. एंड सब जिंदगी तो सभी जीते हैं, लाइफ तो सभी जी रहे हैं किसी न किसी रूप में, सब मेहनत कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं. तो मेरी तरफ से ये छोटा सा कंट्रीब्यूशन अपने देश के लिए, अपने भारत भूमि के लिए, कि क्या मेरे जाने से पहले मैं कुछ कर पाऊं जिससे अपने छोटे लेवल पे where this country becomes a lot more empowered. एंड एक सोच मेरे मन में बहुत पहले आई थी when I read somewhere way back in 1990s कि कोई भी देश हो, चाहे वो भारत हो, कोई भी देश हो, तो कोई भी देश जो है ना, उसमें बेकारी नहीं होती, बेकार होते हैं. So a lot of people are there in any country where if they are empowered, अगर उनको हल्का सा मजबूत किया जाए, सशक्त किया जाए, तो बहुत कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं. And I think every country needs that. So does India. So somewhere
अपने कुछ एफर्ट से, एंड सो मेनी ऑफ यू हैव बीन लिविंग योर लाइव्स इन सच अ वंडरफुल वे। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपनी जिंदगी से और आप सबकी जिंदगियों से और जिंदगियों तक पहुंचूं और उनको एम्पावर करूं कि कम से कम हमारे जाने से पहले हम कुछ तो दे के जाएं इस मातृभूमि को, जिससे ये और मजबूत और पावरफुल हो जाए। एंड एस्पिरेशंस तो हैं कि वी शुड बी नंबर वन इकोनॉमी इन द वर्ल्ड द इयर्स टू कम। ये सब तो ठीक है, होता रहेगा, दिस विल बी एन आउटकम। बट वो आउटकम पहुंचने तक या पहुंचने के लिए आपको और मुझको तो मजबूत होना पड़ेगा। आपको और मुझको तो उतना स्ट्रांग होना पड़ेगा, पावरफुल होना पड़ेगा कि हम अपने चैलेंजेस को हैंडल कर पाए, और अपने चैलेंजेस को हैंडल करते करते हम शायद कुछ लोगों की जिंदगी को लिफ्ट कर पाए। और हम तभी लिफ्ट कर पाएंगे जब हम खुद कमजोर होंगे। अ वीक पर्सन कैन नॉट लिफ्ट somebody else, right? A weak economy cannot lift another economy. A weak organization cannot empower people within the organization. So organization को पावरफुल होना पड़ेगा, देश को पावरफुल होना पड़ेगा, और उसके लिए हम सबको पावरफुल होना पड़ेगा। सो अगर हम बात करते हैं कि विश्व गुरु बनना है भारत ने, तो भारत को तो मजबूत होना पड़ेगा ना। और भारत को मजबूत होना है तो फिर हम सबको मजबूत होना पड़ेगा। तो ये छोटा सा इंडेवर है, छोटा सा एफर्ट है फ्रॉम माय साइड, एंड that's the reason why Happy Minds is there every week. हाँ जी, स्वप्निल फर्स्ट टाइम फ्रॉम नेवासा। अरे वाह, नेवासा से काफी आज लोग आ रहे हैं। मारुति फ्रॉम नेवासा। श्रुति फर्स्ट टाइम ऑन हैप्पी माइंड्स, बट डिड लाइफ 360 दिस ईयर। ओह, चलो। अर्जुन फर्स्ट टाइम फ्रॉम नेवासा, ग्रेट, wonderful to have so many of you. Sir, you are the one, because of you I learned to maintain and improve the relationship. Oh, great, Sagar. तुमने लिखा नहीं, यू आर मेंटेनिंग योर रिलेशनशिप एंड इंप्रूविंग योर रिलेशनशिप विद whom? नेबर्स वाइफ। चलो, चलो, ग्रेट। सो वंडरफुल टू सी ऑल ऑफ यू। सो मेरा एक ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको बताया, दैट्स माय ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग हैप्पी माइंड्स। बट I let me share with you. A lot of you share with me कि आप आते हो तो we get inspired. आपकी वजह से लाइफ हो रही है, and I know you're moving ahead in life. सागर बोलता है, I've been able to maintain my relationship in a better way. Thank you so much for giving me some amount of credit, but I feel that the credit goes to you all equally also, because you all are there every Saturday morning. जैसे मैंने बोला कि कुछ नाम ऐसे हैं जो मुझे एकदम मेरे लिप्स में है कि because I see your names, I read your comments every Saturday, and I see, wow, क्या कमिटमेंट है। अगर मेरा कमिटमेंट है हर सैटरडे की सुबह आने का, तो आप में से बहुत से लोगों का कमिटमेंट है कि आप हर सैटरडे सुबह सुनते हो। And that's how together we will make the mission a possibility as we keep on living. So that's how it is. uh, Welcome Sandeep, first time from Pandharpur. Are Lord Panduranga, yes. आप एक पुण्य भूमि से हो। सो वेलकम संदीप फॉर हैप्पी माइंड्स। चलिए, आज की कुछ शेयरिंग करते हैं। वी हैव सम सक्सेस स्टोरीज with us to share a few of them. First one is which I got yesterday. This is from Sandeep Khote, one of my students, one of my students for the business program. He says, "Sir, I'm super happy to share with you that this month we are going to touch 2.75 crore top line, which is the highest ever for our company. We might even touch 3 crores." And he says, "Sir, believe me, my body is shivering while typing this message to you. And you know what crisis I was in the last 2 3 years, and I know when I was reading this, I could relate with, because he had called me, he has spoken with me, and he was down in his dumps because he had some major losses in his business. And I remember when he had messaged me, and he said, "ऐसा हो गया." I said, "Call me." And we spoke, because जब एक इंसान एक किसी अपने डाउन टाइम में चल रहा होता है, so that's the time when the person needs maximum support, right? So I remember my conversation with him, and I said, this is what it is. You took some wrong decisions, and one of the major decisions he took wrong was because he had made some money. And एक होता है कि जब नया नया इंसान बिजनेस में आता है और फिर कुछ पैसा कमा लेता है, so you are not mature enough to handle money. And I've seen many such cases in entrepreneurship, and I want you all to listen to it from, maybe from his life we can learn a lot. So especially the ones who have been in jobs, and from jobs you move on to entrepreneurship, or जब आप business में आते हो from a salary background, and
you happen to do good work and you make some good money in the next 2-3 years. So वो पैसा होता है कि आपने कभी वो पैसा सोचा नहीं होता है कि हाँ इतना पैसा आ सकता है, आप कमा सकते हो, एंड सडनली यू आर, आपके हाथ खुजलाते हैं as to what to do with that money. So not with all, but काफी लोगों का मैंने देखा है ऐसा है कि those who have not handled money before, and it's okay because we are immature. तो जैसे बोलते हैं घर में एक बच्चा होता है तो भाई एज पेरेंट्स यू आर नॉट मेच्योर इनफ टू हैंडल योर चाइल्ड, जो पहला बच्चा आपका है. सो यू आर काइंड ऑफ कमिंग टू टर्म्स टू व्हाट बीइंग अ पेरेंट इज. तो इसलिए ना जो पहला बच्चा घर में होता है वो तो एक्सपेरिमेंटेशन में निकल जाते हैं. जो बड़े बच्चे होते हैं उनके साथ तो माँ बाप हाथ ही साफ करते रहते हैं. जब दूसरा बच्चा होता है, तीसरा होता है, तीसरा तो नहीं, पर दूसरा बच्चा जब होता है तो फिर वो दूसरा बच्चे को जरा आप ध्यान से रखते हो बिकॉज आपके हाथ साफ हो गए होते हैं विद द फर्स्ट चाइल्ड. सेम इज द केस विद मनी कि you are not mature. So he was not mature enough, and he did some investments here there, and as a result, the company went for a toss. तो जिस कंपनी से पैसा आया हम उस कंपनी में पैसा नहीं लगाते, उससे निकाल के हम कहीं और लगा देते हैं बिकॉज होती है समझ नहीं होती है. And he suffered some huge losses of 2-3 crores. And he continues to write. He says, best part was I have not compromised on all company culture, upgradation, focus towards team and customers. And you are the reason that I withstand even in such situation. I burned more than 2.5, 3 crores. But now I crossed break-even mark. Very soon I will have positive cash flow in my business. And thank you so much for being there right throughout my life. So ऐसा उसने मुझे मैसेज किया तो मैंने उसको बोला कि this I'm sure this is the beginning and you will reach to your BHAG. तो बिजनेस में हम एक बड़ा विजन रखते हैं कि हमने क्या करना है. तो उसने मुझे कहा कि सर जब मैंने आपका प्रोग्राम किया था 2018 में, आई had kept a vision of 100 crores क्योंकि उस समय मेरा टर्नओवर वाज अराउंड 4 crores. एंड उस समय भी मैंने उसको बोला था और आज कल भी मैंने उसको मैसेज करते बोला कि इवन 100 crores इज टू लेस. तो मुझे वो कल मैसेज करके बोलता है कि हाँ आप जो कह रहे थे वो ठीक है क्योंकि जिस ढंग से मैं अभी चल रहा हूँ I don't think 100 will be a far cry. 100 will be reached in just 2-3 years time. And उस समय जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता ही नहीं कि कभी हम वहां जाएंगे, वहां पहुंच पाएंगे. And but I always say that you got to have two things in your mind. One is you got to have the clarity of future in your mind, but the clarity of the future should not make you weak in the present. कभी कभी क्या होता है हम फ्यूचर को लेके इतने पॉजिटिव होते हैं कि वर्तमान में जो एक्शंस करने चाहिए उसमें हम ढीले पड़ जाते हैं बिकॉज काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है ये तो हो ही जाएगा. ना ना, कभी कोई चीज होती नहीं है, करनी पड़ती है और उसको उतनी ही शिद्दत से करनी पड़ती है जितनी वो रिक्वायरमेंट है उस समय की. यू माइट हैव अ विजन टू मेक अ ग्रेट बॉडी कि आपकी आपको मैराथन भागना है, आपको वेट कम करना है या आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये आपका विजन है. एंड राइट नाउ द करंट सिचुएशन इज कि शायद आप की बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं है और आप हर एक महीने में बीमार हो जाते हो, कभी ठंडी हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है. तो उस समय जो है ना आदमी के मन में, इंसान के मन में बात बैठती है, यार मेरा शरीर यही नहीं हैंडल कर पा रहा है, ये कहाँ क्या हम मैराथन रनिंग की बात कर रहे हैं, कहाँ हम ये इतना 6 पैक बॉडी बनाने की बात कर रहे हैं. एंड आई अंडरस्टैंड दैट, बट आई वुड स्टिल से कि अगर आपकी बॉडी इस समय बड़ी कमजोर है, आप फिर भी उस विजन को होल्ड करिए. और उस विजन को होल्ड करने का मतलब ये नहीं है कि आज जो करना चाहिए वो ना करें, जो करना है वो तो करना है. सो आज अगर बिजनेस बड़ा कमजोर है, बहुत से लोग जब बिजनेस कमजोर होता है तो वो बड़े विजन के बारे में सोचना बंद करते हैं, कहते हैं यही नहीं हम हो रहा है, ये 15 आदमी नहीं संभल रहे हैं, तो ये 100 आदमी की कंपनी बनाना तो सोचना तो बेवकूफी है. एंड आई ऑलवेज से नहीं, ऐसा नहीं है, उसको भी होल्ड करो. लेकिन उसको होल्ड करने का मतलब ये नहीं कि हम जो आज सिचुएशन से गुजर रहे हैं उसको हल्केपन से हैंडल करें. उसको उतना ही जान लगा के हम काम करें जितना हमने लगानी चाहिए. लेकिन आज की परिस्थितियों में इतना ना हम लोग अपने आप को डुबो दें कि हम सोचें ना कि हम फ्यूचर जा सकते हैं. तो ये दो विपरीत, दो ऑपोजिट एंड्स को होल्ड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक जो सिचुएशन बोल रही है आपकी, चीख चीख के बोल रही है तुमसे ना हो पाएगा, उसको हैंडल करना. और उसको हैंडल करते हुए फ्यूचर को होल्ड करना अपने माइंड में. ये टू ऑपोजिट एंड है. एक बोल रहा है नहीं हो पाएगा, एक बोल रहा है हम करके रहेंगे. इन दो ऑपोजिट्स को होल्ड करना is what real entrepreneurship is in the business term. इन दो opposites को hold करना is really being living life to the fullest in the real terms. तो ये उसने किया and I'm so glad that
he could do it. So I don't know if he's there for Happy Minds today or not. I've been traveling a lot last few days, not being able to rest. Pardon me for my throat. Uh, Another success story is from just a minute. Another success story is from another Brazilian, Yash Lunawat, and he says, "Sir, we have started a new vertical for corporate gifting, and we got great orders from Indigo, from L&T, Hyundai, and he sent me some beautiful designs of that, and he says this is a new vertical, and this vertical got a boost from the big giants of the Indian corporate world. So great going, Yash." And the last sharing for today is from Jyotsna Kanedia. Jyotsna Canadian, she says, "I could connect with you, the last HM, so much. The energy we bring makes all other aspects of success useful. I feel I'm low on energy and it's affecting my life. And I've started meditating to feel energetic." And then she has a question: how do I meditate to feel energetic? Please give me clarity. Thank you. I'm happy that you could connect with the last HM. And आप में से जो लोग last Happy Minds में नहीं थे, you can go to YouTube and check the 5 ingredients to success वाला Happy Minds है, मैंने उसमें बात करी थी. And this is again one more time just to reconnect with the last HM here, what Josna shared, that कितना भी आपके पास knowledge हो, कितना भी आपके पास talent हो, कितने भी आपके पास मौके हो, कितने भी आपके पास आपका अच्छा support system हो, फिर भी शायद आप कामयाबी से चूक जाएंगे अगर आपके पास हाई लेवल्स ऑफ एनर्जी ना हो. ठंडे इंसान ज्यादा कुछ कर नहीं पाते. तभी वो बोलते ना, हर किसान बोलता है, हर किसान को जो जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं उनको समझता है ये कि कभी भी एक लाइव अंडे को, यू हैव अ लाइव एग, यू नेवर मेक अ डेड हेन सिट ऑन अ लाइव एग. कि एक मरी हुई मुर्गी को आपने अगर एक जिंदा अंडे को बिठा दिया, वो अंडा कभी हैच नहीं करेगा. यू गॉट टू हैव अ लाइव हेन ऑन टॉप ऑफ अ लाइव एग. तो जो है उसके ऊपर अगर एक ठंडा इंसान बैठ गया, मैं मरा हुआ इंसान तो नहीं बोलूंगा, भाई ठंडा इंसान बैठ गया, तो वो सपने कभी पूरा नहीं होंगे. सो यू हैव टू हैव दैट अलाइवनेस इनसाइड, यू गॉट हैव दैट एनर्जी इनसाइड, एंड एनर्जी इज इन्फेक्शियस. ये एनर्जी जो है, इट विल मेक यू डू मेनी थिंग्स. इट विल मेक यू हैंडल चैलेंजेस लाइक नेवर बिफोर. इट विल मेक यू फील दैट कि आप इट विल मेक यू सी थिंग्स व्हिच यू हैव नेवर सीन बिफोर. It will make you feel the way you have never felt before. It will make you attempt, energy will make you attempt things which you have never attempted before. Energy will make you accomplish things which you have never accomplished before. Energy will make you meet people whom you have never met before. Energy will make you inspire people, motivate people. It will make you develop the will inside you to do something phenomenal. That's the power of energy. Energy जो है ना, ये गर्माहट है, ठंडापन नहीं है. तो बहुत से लोग जो है उनके पास काबिलियत बहुत है लेकिन ठंडे हैं. बहुत से लोग हैं जिनके पास नॉलेज बहुत है लेकिन ठंडे हैं. बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, बड़े स्ट्रांग लोग इनके आसपास, माँ बाप हैं, फ्रेंड्स हैं, शायद अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम भी है, नॉलेज भी है, टैलेंट भी है, लेकिन ठंडे हैं. और इसी चक्कर में जब लोग ठंडे होते हैं, चाहे कितनी भी नॉलेज हो, कितना भी टैलेंट हो, कितने भी आसपास का उनका सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग हो, तो उनके पास जो मौके आते हैं वो मौकों को पकड़ नहीं पाते. बट पीपल हु हैव द फायर इनसाइड, जिनके अंदर ऐसी आग लगी होती है, दे आर एबल टू मैक्सिमाइज, दे आर एबल टू बिल्ड ऑन द टैलेंट, दे आर एबल टू बिल्ड ऑन द नॉलेज, दे आर एबल टू मैक्सिमाइज अपॉर्चुनिटीज अराउंड देम, क्योंकि अंदर आग बहुत. तो ये आग को आप ना बरकरार रखो, ये एनर्जी को आप बरकरार रखो, एनर्जी क्रिएट करते रहो. एंड आई शेयर्ड विद यू लास्ट हैप्पी माइंड्स कि एनर्जी क्रिएट करने के 2 तरीके हैं. वन इज द ईस्टर्न वे, वन इज द वेस्टर्न वे. तो वेस्टर्न वे is a like all western kind of concepts, they are shortcuts, they are immediate. तो वो भी इस्तेमाल करो. And then the eastern way is a long term, but it stays for long term. So ध्यान साधना से जो एनर्जी आप जो है क्रिएट करते हो इनसाइड, you kind of activate your energy sources inside.
तो उससे एनर्जी जो है, इट काइंड्स ऑफ यू कीप ऑन जनरेटिंग एनर्जी फॉर द राइट कॉजेस. एंड ऑफ कोर्स द वेस्टर्न फिलॉसफी सेज कि आप अगर अपने बॉडी को एक्शन में रखते हो, मोशन में रखते हो, तो एनर्जी आती है. एंड सो यू कैन यूज बोथ द स्टाइल्स ऑफ जनरेटिंग एनर्जी. बट कॉन्सेप्ट ये है दैट स्टे ऑन हाई लेवल्स ऑफ एनर्जी, कि आपसे मिलके लोगों को लगे तो सही, यार हम किसी से मिले हैं. दे शुड फील द लाइफ इन यू. अक्सर जो होता है, जाने अनजाने में हम लोगों से मिलते हैं, एंड वी आर नॉट एबल टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन पीपल. वी आर नॉट एबल टू इन्फ्लुएंस पीपल, बिकॉज समवेयर आपके अंदर की ऊर्जा जो है ना, वो कम रही है. एंड देयर सम पीपल जिनसे आप मिलते हैं, उनके चेहरे पे तेज होता है, ग्लो होता है, एंड उनकी बातों में दम होता है, उनकी, क्योंकि उनकी जिंदगी उन्होंने वैसे जी होती है. तो समवेयर योर काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस, योर काइंड ऑफ impacted by them, that आप भी कुछ करने के लिए सोचते हो. I think that's what each one of us can do. We can kind of have an impact and affect lives around us. And that's the most awesome thing to realize, कि एक इंसान दूसरे इंसान को इन्फ्लुएंस कर सकता है कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए. And अगर if it happens, this means we have lived our life uh, in a much better way than what we could have lived. So this is what I shared last Happy Minds. So मेरे साथ हो कि नहीं आप लोग? You're there with me or not? कहाँ खोए हो? चलो, stay alive, stay excited. हम्म. सांस लेते रहना, बाकी मैं देख लूंगा, ठीक है? जिंदा हूं मैं, ओके. चलो, लव यू फॉर बीइंग देयर ग्रेट. चलिए, आज का सब्जेक्ट जो है ना, आई हैव ऋषि, यू हैव रेज्ड योर हैंड. मैं आपका माइक ऑन करता हूं, अगर आपको कुछ शेयर करना है ऋषि. यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ ऋषि, एंड देन यू कैन शेयर, अगर आपने माइक ऑन, आपने हैंड रेज किया है तो. And anybody would like to share something, you can have your hand, you can raise your hand. I'll have you unmuted there. हाँ ऋषि. ओके. हाँ, your mic is on ऋषि. You got 5 seconds to start, otherwise मैं unmute करूंगा. ऋषि शायद नींद में है, नींद में कुछ हाथ ऊपर नीचे किया. चलो, we'll go ahead. ऋषि शायद गलती से उसने अनम्यूट किया. He said sorry by mistake. अच्छा, ओ अच्छा, दोनों टाइप किया, मैं वहां नहीं पढ़ पाया. क्या क्या तुम्हारा हाथ कहाँ का चलता रहता है ऋषि सुबह सुबह? चलो, कोई नहीं. Could not connect, no worries. So if you want to share something, you can raise your hand, or फिर maybe I'll have your mic on and you can share something. चलिए, आज का जो सब्जेक्ट है, I was thinking about it. I was in Siliguri yesterday and day before. I was there for a marriage, and it's a nice, lovely town. I wish they had kept it more clean. थोड़ी और सफाई रखते सिलीगुड़ी में, and like many other cities of India जो growing है, जो upcoming है. And मोदी जी के बेचारे कह के थक गए हैं, लेकिन एक इंसान क्या करेगा, कितना करेगा. And that's the case with many other cities. Anybody from Siliguri, I'm so sorry, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन एक ऑब्जर्वेशन होता है when you go to a city and you come back. So people are nice and warm and lovely. I had lovely, एक वहाँ की एक स्पेशल जगह है जहाँ पर चाय मिलती है सुबह सुबह. So we went there to have tea, and I'm just missing on the name उस जगह का जहाँ पर वो चाय हमने पी कल. And lovely butter toast. और चाय जो है ना उनका, they what they do is they have the tea leaves and tea branches, और उसको डाल के ऊपर से खौलता हुआ पानी डालते हैं, एंड देन नीचे से जो है ब्रू करके चाय जो है ना निकलती है. एंड नेताजी, और थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग. वर्षा, यू आर फ्रॉम सिलीगुड़ी. हाँ, सो इट्स नेताजी केबिन, ऐसा वो एक नाम है उस जगह का. एंड आई वाज देयर यस्टरडे. वंडरफुल स्मॉल प्लेस. मतलब आई थिंक 12 फुट बाय 12 फुट की जगह होगी, बट एक नाम हो जाता है ना इतने सालों से. लवली टेस्ट टू टी.
आई विश उतना ही ये लोग साफ सफाई पे ध्यान देते, और ये दिस नॉट ओनली फॉर सिलीगुड़ी, इट्स फॉर एवरी स्मॉल टाउन ऑफ आवर्स, बिकॉज ग्रो कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ग्रो तो हो रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट वो एक आंखों को सुहाता नहीं है। हाँ जी। तो आई वाज देयर एंड सो केम बैक लास्ट नाइट, एंड सो ट्रैवल हो रहा है, तो दैट्स हाउ इट हैज बीन। बट कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट फॉर टुडे, आई वाज thinking that what do I share with you all today for this happy minds. एक बहुत सुंदर सा थॉट आया, एंड द थॉट वाज बेस्ड ऑन दिस, दैट हम लोग अपने आप को बोलते हैं वी आर ह्यूमन बीइंग्स, एंड एज ह्यूमन बीइंग्स, कहने से हम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं या जीने से ह्यूमन बीइंग्स होते हैं? नो, व्हाट इज बीइंग ह्यूमन? एंड द मोर आई थॉट अबाउट इट, द मोर आई रियलाइज इट्स सो सिंपल टू एक्चुअली रियलाइज दिस, एंड देन ऑल्सो रियलाइज कि जाने अनजाने में वी आर नॉट लिविंग आवर लाइव्स एज अ ह्यूमन। तो हम हैं बाय बर्थ ह्यूमन, बट हम जी नहीं रहे हैं एज अ ह्यूमन। व्हाट इफ द बेसिक्स वर रिविजिटेड, एंड अगर उस बेसिक्स पे रिविजिट किया और उस पे जीना चालू किया, तो समवेयर द वेरी लाइफ ऑफ आवर्स would be one which we will be not only proud of, but we would have ended up living a life to the fullest. तो मेरा आपसे सवाल है, आप सबसे, इसको सिंपल करते हैं सब्जेक्ट। मेरा सवाल है आपसे, what it is to being human, what it is to being human। चलो आप लोग बताओ, let me read a few comments, what it is to being human। oh, no, I'm not talking about the being human brand aa gaya hai, right? I'm just saying that what it is to being a human, because we were born as a human being, right? So we were not born as a Tommy or a Moti or a Sheru or a Chintu। we, we were born as a human being। मैंने नाम लिए, मैंने स्पीशीज नहीं बोली। You can choose any species। तो आप बताओ मुझे, what it is being born as a human। So let me take you from there, let me have some understanding। कुछ लोगों के लिए गूगली गया, ये सोच रहे थे क्या लिखें क्या लिखें, what it is to be being born। Good life for all around us। Okay, this is, Naren is saying good life all around us, this is being born as human, this is being human। सचिन मालपानी ने बड़ा लिखा हुआ है, कितना पढ़ने को लगाएगा सचिन। Being human means to continuously do the best I can for everyone and everything and I come in touch with shabash। बढ़िया। श्वेता कह रही है kind and happy, emotions with care, to contribute, to sacrifice, to live fullest। जानवर जैसा बर्ताव नहीं करना। ये मुद्दे की बात है। So what is being human? Let us not be like animals। I absolutely agree with you प्रशांत, बिल्कुल जानवर जैसा बर्ताव नहीं करना है। तो फिर आज का सब्जेक्ट हम करते हैं कि जानवर कैसा बर्ताव करते हैं। कि कुछ लोगों को मालूम ही नहीं कि जानवर कैसा बर्ताव करते हैं। ठीक है, नॉट जस्ट लिविंग फॉर सर्वाइवल प्रोसेस। ठीक है, कीप इवॉल्विंग एंड हेल्पिंग सराउंडिंग टू इम्प्रूव, एबिलिटी टू इवॉल्व, live with a purpose, thoughtful actions, having the understanding and maturity for everything we do and say। Wow, just being kind for no reason। तो आप ही बता दो, conscious living, sensible, my God, living life in supportive to each other and mother nature। इतना सब ज्ञान है यार तुम लोगों को, तो काय को फिर क्या बताऊं तुम लोगों को, you already have all, you know all the answers there। So मेरा सवाल बड़ा सिंपल था, and so nice of you that you have written so many answers there। Not that you don't know, maybe मेरे इस क्वेश्चन पूछने से आप शायद बाध्य हो जाओगे सोचने में कि हाँ यार, what is it to be a human, what it is to be a human being, right? Living on basic humanly aspects। Okay, ठीक है, हाँ वही तो नहीं हो रहा है सर, स्वप्निल वही तो नहीं हो रहा है। हैविंग द बिलीव दैट एवरीवन इज हैविंग सेम चैतन्य। आयशा भाई बहुत भयंकर बात कर दी सोनाली आपने। थिंक ऑफ योरसेल्फ एंड अदर्स। लिविंग लाइक अ वाइफ, नहीं सॉरी नॉट वाइफ, लाइफ।
living like a life and supportive to each other. स्वतःचे अधिकार आणि हक्काचे अपेक्षा ठेवत. शाबाश, सागर बेबी फॉर्म में आ गया. ओके, चलो लेट्स मेक इट सिंपल. आप सबने जो बोला ठीक है, लेट्स मेक इट सिंपल. लेट्स काइंड ऑफ, मैं इन सबको कोलेट करता हूँ और सिंपल तरीके से बताता हूँ. मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, एंड आई वांटेड टू बी कॉन्शियस थ्रू आउट दिस वीक. इट्स अ वीकली शॉट, राइट? So happy minds are weekly shots. Every week you take a shot and you kind of, you're supposed to live your life as per the weekly shot in a better way. So जो आपका जीने का तरीका है उससे थोड़ा हायर लेवल ऑफ जीने का तरीके से आप अगले हफ्ते को केटर करोगे, मिलोगे, जियोगे. That's what my expectation is. And as a result, हम सब मिलके we make this country of ours a very empowered country. That's a mission. So keep that mission in mind, that you got to live your life not only for yourself but for द कंट्री. भारत के लिए एक अच्छी जिंदगी जीनी है, इतना तो हमारे अंदर से आग आनी चाहिए कि एटलीस्ट इफ नॉट फॉर मी, एटलीस्ट फॉर दिस कंट्री आई शुड लिव अ बेटर लाइफ. तो उसके लिए हल्का सिंपल करते हैं सब्जेक्ट को, दैट व्हाट इट इज टू बी अ ह्यूमन. सो क्वेश्चन इज, आई एम बोर्न एज अ ह्यूमन बीइंग. हम सब पैदा हुए एज अ ह्यूमन बीइंग, बट इट इज नॉट इन बीइंग बोर्न एज अ ह्यूमन बीइंग, राइट? दैट मेक्स अ डिफरेंस. इट्स इन लिविंग अ लाइफ लाइक अ ह्यूमन बीइंग दैट वी आर ह्यूमन. ये सिर्फ पैदा होने की बात नहीं है, ये जीने की बात भी है. तो फिर अगर जीना एज ए ह्यूमन बीइंग तो क्या फर्क है, या क्या होना चाहिए, क्या बेसिक्स होने चाहिए ह्यूमन बीइंग के? सो इफ यू टू सी, किसी ने लिखा, वो प्रशांत ने लिखा कि जानवरों जैसा बर्ताव नहीं करना है. तो आई एम जस्ट कनेक्टिंग विद दैट कि अगर आप देखोगे अपने आसपास पूरी सृष्टि में, फॉर ऑफ ऑल द क्रिएशन इन द वर्ल्ड हियर, ह्यूमन बीइंग्स, वी आर द ओनली वंस आउट ऑफ ऑल क्रिएशंस who can who can who can laugh and who can smile. What is to be a human? Out of all the creations in the world, we are the only ones who can laugh, who can smile. And that is to be human. And then अगर मैं आज की भाषा में बोलूं, जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, we are the only ones who can do lol. We are the only ones who can do lol. है ना? LOL क्या? So laugh out loud. क्या बोलते हैं आप लोग? We are the only ones who can do that. Have you ever seen a Tommy laughing? अब बफलो, भैंस को हंसते हुए देखा तुमने कभी? बुलडॉग को देखा हंसते हुए? So there is this, you know, there are three gears to it which people live in. Three gears. Let me share with you the three gears of life. So one is a gear of your face. मैं face की gear की बात कर रहा हूँ. So one is a face which is a tight face. Tight मतलब ऐसा tight face है, सख्त face है. ये face को कैसे describe करूं? तो मालूम है कॉन्स्टिपेशन क्या है? मालूम है ना कॉन्स्टिपेशन? सो जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है, मतलब कब्ज होता है, पेट टाइट होता है उसका, और वो जाके बैठता है टॉयलेट में और वहां जाके जोर जोर ऐसे जोर लगाता है वहां में. तो वो एक फेस है, दैट्स गियर जीरो. तो बहुत से लोग जो है ना ऐसे टाइट निकलते हैं बाहर, मार्केट में, बिजनेस में, सड़क पे. उनको देख के ऐसा लगता है ना, इनका हुआ नहीं क्या आज सुबह? So they are the ones who are on gear zero. They don't smile. उनका चेहरा टाइट रहता है, as if they've had a smile bypass. They've had a humor bypass. लोगों का हार्ट का बाईपास होता है ना, इनका ह्यूमर का बाईपास होता है. They hardly have, उनको बहुत या तो जोक लगता है सुनाने के लिए जिससे वो हंसे, बट नॉर्मली जनरली उनकी लाइफ टाइट ही रहती है. सो दिस इज गेयर जीरो. फिर कुछ लोग होते हैं, वो होता है गेयर टू में आ जाती है, and the gear two is laughter. Now we are the only human, we are the only ones in the world who can have laughter. And इन दोनों के बीच में एक गेयर होता है, gear one, which is called smile. So consciously you should move from gear zero to gear one, from gear one to gear two. And that's the way it was in the past. आज से कोई 20, 25, 30 साल पहले, maybe the time of our grandfathers or maybe our fathers,
कभी सोचा नहीं होगा किसी ने कि इंसानों के लिए लाफ्टर क्लब्स भी होंगे, वेर उनको बुला के हंसाया जाएगा। इट वॉज अ पार्ट ऑफ द लाइफ। वो कहीं गली में जाओ तो कहीं जोर से ऐसा हंसने की आवाज आती रहती थी पहले। And that's how the evening panchayats or evening meetings in the villages, in the small towns would be. And then slowly वो मीटिंग्स जो है ना कम हो गई, तो टीवी घर में आ गए, तो लोग अपने अपने घरों में रहने लगे, बाहर जाना बंद हो गया, घरों में रहने लगे। फिर टीवीज में उन्होंने कहा, टीवी भी क्या होता था, कुछ घरों में कम होते थे तो और लोग के घर देखने आते थे, फिर भी कुछ मिलना जुलना बचा था, फिर भी साथ हंसना बचा हुआ था। फिर सबके घरों में टीवी आना चालू हो गए, फिर टीवी में और चैनल्स आना चालू हो गए, फिर उन्होंने कहा और चैनल के साथ साथ जो है वीसीआर भी आ गए। And so everything became kind of personalized. So people stopped meeting each other, people stopped going to each other's houses. Festivals will be happy, hopefully happy Diwali. We just keep on messaging, stop going to people's places. As a result, इंटरेक्शन कम हो गया, और उसके चक्कर में हंसना, जो एक 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 हमारा एक एक एलिमेंट था ऑफ बीइंग ह्यूमन, वो कम हो गया। एंड देन वो कसर कम नहीं थी तो फिर मोबाइल्स आ गए। एंड नाउ यू टू सी 5 पीपल। अब घरों में भी अगर वो एक घर है तो पहले एक टीवी देखता था मिलके, तो मिलके हंसते थे कि एक सीरियल चालू है, जाने भी दो यारो, सब लोग मिलके देख रहे हैं, सब हंस रहे हैं घर में, मम्मी पापा बच्चे चिंटू पिंटू सब हंस रहे। अब वो भी खत्म हो गया कि एक घर के अंदर पहले तो एक पूरी कॉलोनी मिलके हंसती थी। पहले तो एक पूरा एक एक वो बोलते हैं ना कि आसपास के पड़ोसी मिलके सब हंसते थे कहीं बैठ के। फिर वो बंद हो गया तो एक परिवार मिलके हंसता था, अब वो भी बंद हो गया, क्योंकि उस परिवार के अंदर 5 लोग हैं तो 5 के पास मोबाइल है। अब वो अकेले ही हंसता है मोबाइल में, अगर हंसता है तो। अरे कितना हंसेगा, जोर से हंसता नहीं है, जोर से हंस नहीं सकता, हंस पाता नहीं, बिकॉज 1 to 1। और वो भी 1 to 1 किसमें, 1 to मोबाइल। मेरे लिए मुझसे पूछो कितनी ताकत लगती है टू लाफ ऑन अ स्मॉल कैमरा। It's madness to laugh on a camera when you have nobody to respond back to you। फिर तुम में से कुछ अच्छी आत्मा है जो वहां से एक लाफ्टर का इमोजी भेज देते, तुम्हें लगता है हाँ जनता जिंदा है, हंस रही है। बट इट्स मैडनेस टू लाफ एट अ कैमरा। तो इसलिए लोग ने अभी हंसना बंद कर दिया, वो हल्का स्माइल कर लेते हैं। एंड दैट्स हाउ लाइफ हैज कम टू, दैट्स द पॉइंट लाइफ हैज कम टू। So what is being human is to have this shift from gear 0 to gear 1, and from gear 1 to gear 2। ये बीच में शिफ्ट होते रहना चाहिए। नॉट दैट कि gear 0 नहीं आएगा, आएगा ना कुछ सिचुएशन होती है जहां पर आप गौतम गंभीर बन जाते हो, होगा, और होना पड़ता है कभी कभार, हो जाता। बट उसी गेयर में रहोगे तो गाड़ी कैसे चलेगी यार। gear 0 में रहोगे तो गाड़ी क्या चलेगी कैसे। तो यू हैव टू गो टू gear 1, स्माइल। एंड व्हेन यू स्माइल, हैव यू एवर कभी आप I was in a marriage yesterday, day before. So every time the picture was taken, what was asked by the cameraman? Smile. Because when you smile, कोई rocket science नहीं बताने के लिए कि when you smile you look better than what you would look in gear 0. Gear 1 makes you look better ना। और कभी कभार आपकी कोई किसी ने पिक्चर खींच ली जब आप हंस रहे थे, that was the most awesome picture of your life. So that's why you look the best. So being human is to go from gear 0 to gear 1 to gear 2. तो पूछना है अपने अपने आप से, you should ask yourself, in a day, how many times you are being human? And being human is to smile. Being human is to laugh. So in a day, how many times you portray to the world that you're human? कोई अगर हमें बाहर से देख रहा होता, मार्स से आया हुआ है, जुपिटर से आया हुआ कोई अगर हमें देख रहा होता कि यार ये इंसान लोग का फितरत कैसी है, कहता है इंसान लोग की फितरत है यार, हंसते हैं। तो मैंने वो क्या कहा, मैंने तो पढ़ा है मैनुअल में इंसानों के कि इंसान हंसता भी है, लेकिन ये सारी आत्माएं जो घूम रही है ये तो उनका हंसना ही बंद है। सो बीइंग ह्यूमन इज टू स्माइल, बीइंग ह्यूमन इज टू लाफ। सो इन अ डे you should laugh as much as you can. You can smile as much as you can. You should smile. And when you laugh, na, it is said that your internal organs, they go for a jog. When you laugh, your internal organs jog. जब आप जॉगिंग करते हो तो आपकी मसल्स वगैरह होती है, बट आप जब हंसते हो तो ऐसा अंदर के ऑर्गन्स आपके एकदम वो जॉगिंग पे जाते हैं, वो हेल्दी हो जाते हैं। तो एकदम बेली लाफ्टर होना चाहिए, एकदम ठाके मार के हंसना चाहिए।
दिन में 1-2 बार तो हंसना चाहिए. डू यू अग्री विद मी और नॉट? बीइंग ह्यूमन इज टू लाफ एंड टू स्माइल. बेसिक्स है ना. लेकिन तुम्हें मैं शेक्सपियर क्या पढ़ाऊं जब एबीसीडी के वादे हैं? तुम्हें मैं एल्जेब्रा क्या पढ़ाऊं जब 2+2 नहीं हो रहा है? एंड बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं सर और है बड़ा पढ़ाओ और कुछ बढ़िया चीज समझाओ. अरे तुम्हारे बेसिक्स के वादे हैं यार. तुम्हें देख के लगता नहीं तुम इंसान हो. तुम बाकी सब चीज की बात करना बेकार है. और रोज ना तुम लोग मैसेज करते हो, व्हाट्सएप करते हो, स्माइल, इट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन योर लाइफ. And smile is what makes your facial, you use less muscles when you smile, you use more muscles when you frown. ये सब ज्ञानबाजी तुम लोग करते रहते हो और वही मैसेज तुम लोग भेजते हो, लेकिन तुम्हारे उस मैसेज से कोई लेना देना नहीं है. Somewhere it is written down in the message in invisible ink that this is all fictional, इसका मेरी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है. So you kind of just keep on forwarding things, not realizing that you got to live it and then forward it. So हंसो यार, देखो जिंदगी वैसी भी ले रही तो, तो क्यों ना हंसते हंसते बोला यार चल ठीक है तुम भी ले लो. राइट. एक शॉप का नाम था ले लो और उसके नीचे उसकी टैगलाइन थी, उसका शॉप का नाम था ले लो. आई एम टॉकिंग जेन्युइन ना. मैंने वो पढ़ा तो मैं हंसते हंसते आई जस्ट कुडंट होल्ड माय लाफ्टर. उसका नाम था ले लो और उसके नीचे उसने लाइन लिखी थी, जब जिंदगी तुम्हारी ले रही है तो तुम भी कुछ ले लो. अरे आई सेड वाह व्हाट क्रिएटिविटी. ये लिखा हुआ है उसमें LELO ले लो. तो मैंने कहा ये साला कैसा नाम है ले लो, एंड उसके नीचे लिखा हुआ है कि जब जिंदगी तुम्हारी ले रही है तो तुम भी कुछ ले लो. एंड आई सेड दिस इज ऑसम क्रिएटिविटी, ऑसम क्रिएटिविटी. तो यार तो तुम सब जो है ना इस हफ्ते, all of you should have more smiles on your face, you should have more laughter in your life. क्या बोलते हो? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? पॉइंट ऑफ द डे नहीं है गणेश, इट्स पॉइंट ऑफ लाइफ. पॉइंट ऑफ लाइफ. Oh my God. So, so this is one thing which you should do this week consciously. So, and होता है ना बहुत बार, मेरा कहना आसान है, मैं मानता हूं, लेकिन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो व्हाट यू डू, practice smiling. I'll tell you a few steps. Practice smiling. And way back in 2004-5, I was training this company, and it was a national company, and I had to go all over the country to train people there. And उनके जो senior manager थे, who was the training head also, तो मुझे बोले कि अरे हेम जी आप जो है ना, ये सब लोग बड़े स्ट्रेस होते हैं, दे आर इन सेल्स एंड ट्रैवलिंग ऑल ओवर, एंड बड़ा उनका मुश्किल होता है, रिकवरी करनी होती है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना होता है, थिंग्स लाइक दैट. सो ये लोग स्माइल करना भूल गए. एंड देन टुगेदर, हम 2004-5 की बात है, तो मुझे भी समझा नहीं कि अच्छा स्माइल करना भी सिखाना चाहिए क्या. तो मैंने उनसे बैठ के समझा. तो मैंने कहा आइथिल साहब आप क्या बोलते हैं? कहते हैं यार इनको स्माइल करना सिखाते हैं. तो वी टू आइथिल, उनका नाम मिस्टर आइथिल था, तो मिस्टर आइथिल और मैं बैठ के हमने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस निकाला, हाउ टू मेक पीपल स्माइल. एंड बड़ा मजा आता था उसको कराने में, बिकॉज वो इतना सिली लगता था. मैं कहा ये भी सिखाना पड़ेगा, तो कहले हाँ यार ये भी सिखाते हैं. तो मैं कहा चलो. तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते थे, एंड आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू व्हाट आई टॉट दोस गाइस 20 years ago. तो पहला, जिसको स्माइल का चैलेंज है, हो सकता है किसी को ना हो, बिकॉज योर मसल्स आर नॉट यूज्ड टू मूविंग दैट फास्ट. हो जाता है ना, आप जिसको यूज नहीं करते वो मर जाती है. एनीथिंग व्हिच यू डोंट यूज यू लूज. तो जिसको यहाँ की मसल्स यूज करने को नहीं आता है, तो यहाँ का अगर ये चौड़ा नहीं होता तो यहाँ पर लाइन आ जाती है. सो यू शुड हैव अ लाइन हियर देन फॉर नॉट टू हैव अ लाइन हियर. सो इसको यूज करने के लिए तो सुबह सुबह ऐसा मुंह खोल के शीशे के सामने ऐसे ऐसे करेगा, पूरा मुंह खोलो, मसल्स को यूज करो, जितना यूज कर सकते हो यूज करो. और ऐसा रोज सुबह 5 बार जाके शीशे के सामने
हाँ ऐसा करके, let the eyes be open wide, let your mouth be open wide, right? And then take your tongue out and create that kind of a flavor where you automatically this part should move around. तो हमने वो बड़ी एक्सरसाइज कराई लोगों की, वो करते करते बहुत से लोग हंसते थे, बहुत से लोग स्माइल करते थे. So I feel that one thing you should do is practice smiling in the mirror every morning, every morning. कुछ हो ना हो, मतलब आपने जो है, you should practice smiling in the mirror. So when you're looking at the mirror and you're dressing, you're making your hair, you're putting your entire पाउडर शॉर्डर जो भी लगा रहे हो आप, वो करो. उसके बाद वो क्वेश्चन आप पूछते हो, हाउ एम आई लुकिंग, पहला क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, हाउ एम आई फीलिंग. एंड देन तीसरा, यू स्माइल एट योरसेल्फ. ऐसे यार, ये स्माइल बढ़िया है, दिस इज किलिंग यार. अरे आप खुद से तो बात करो ना यार. व्हाट अ स्माइल, चुम्बा. कब किया तुमने ऐसा? जब तुम खुद ही को नहीं करते हो तो दुनिया क्या करेगी तुम्हें? और फिर तुम रोते बैठते हो, यार दुनिया मुझे देख के स्माइल नहीं करती, दुनिया मेरे से बात नहीं करती. अरे तुमने खुद खुद से किया है क्या? If you can't, smile at yourself, if you can't give a flying kiss to yourself, then why the world will give to you? दुनिया दुनिया पागल है. So being human is to move from gear zero to gear two as much as possible. It's okay. People will call you, अरे यार बहुत हंसता है. कहने तो अच्छा ही तो, we are being human ना. बड़ा स्माइल करता है. It's being human. So first is in the mirror, practice smiling. Second, when you meet people, always see if you can meet with a smile. Practice. एंड इंडिया में तो प्रैक्टिस की कमी नहीं है. बाहर जाओ, लोग ही लोग हैं, जिसको देखो स्माइल कर दो. क्या दिक्कत है? You enter the I was in the plane yesterday, so you're walking to your seat, so you smile ना. क्या प्रॉब्लम है? You look at people and you smile, and इनवेरिएबली एक ना एक इंसान आपको देख के स्माइल कर देगा. और क्या है, नहीं भी करेगा तो हमें क्या करना, हम तो प्रैक्टिस ही कर रहे थे. शादी माने वाला है क्या? उसको मालूम नहीं आप कौन, आपको नहीं मालूम वो कौन. अपन प्रैक्टिस कर लेते ना. So see if you can smile when you look at people. And the more you smile, the more you build this habit of smiling. Right? तो दो चीज आप करो. सुबह खुद को स्माइल करो, बाहर जाओ, दुनिया में जो मिल रहा है, जितना हो सकता है, 10 में से 5 लोगों को देख के स्माइल कर लो. You remember that. Third thing which you should do is have a few friends. जो कोई ना कोई जो है ना, जो आपके लाइफ में जो बड़ा हंसता है. And see if you can meet them, talk to them, connect with them. ऐसा belly laughter वाला कोई तो हो जो आपको, और होगा कोई ना कोई आपके फ्रेंड सर्कल में होगा जो जो बेली लाफ्टर करता है. यू नो, उसकी हंसी से उसको हंसते हुए देख के आप हंसना चालू करते, या उसके संगत में आप, यू काइंड ऑफ हैव अ बेली लाफ्टर. आई एम ब्लेस्ड विद सो मेनी अराउंड, एंड इट्स फन टू बी विद दोस पीपल. जो सीरियस लोगों के साथ रह रह के आप भी मिस्टर सीरियस गेयर जीरो वाले बन जाओगे. और गेयर जीरो में तो आना ही है ना एक दिन. जब जाएंगे तो लॉट ऑफ पीपल आई थिंक दे प्रैक्टिस दैट, कि लास्ट डे जब हम मरेंगे हमारा चेहरा कैसा होगा. लेट अस प्रैक्टिस दैट. तो क्यों प्रैक्टिस करना है जिसके बारे में जो ऑलरेडी एफिशिएंट है. डेथ इज एफिशिएंट. डेथ नेवर मिसेस. इफ इट कम्स इट कम्स. देयर इज नथिंग कॉल्ड अरे चूक गई, अरे मिस हो गया. डेथ आती है तो आती है. तो उसकी प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? It's life which has to be practiced. And the more you smile, the more you're telling the world, I'm alive. The more you laugh, the more you're telling the world, I'm alive. I'm being human. The simplest of things which you can do. बाकी सब जो है ना, वो तुम पीएचडी लेवल की बातें कर रहे हो. सर इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, सर दूसरों की जिंदगी अच्छी करनी चाहिए. अरे राजा, तेरा एबीसीडी क्लियर नहीं. माई चाइल्ड इज माई स्माइल. बात तो सही है सागर. आई विश योर चाइल्ड कैन से द सेम थिंग अबाउट यू. हिट हुआ तेरे को?
You say, my child is my smile. Your child should say about you like this. My father is my smile. वो देखता हूँ पापा को तो एकदम ऐसा हंसते हुए आते पापा. हाँ? Let people not say Mr. Grumpy has come in, Mr. Grouchy has come in. Let them say Mr. Smiley has walked in, Mr. Laughter has walked in, Mrs. Laughter has walked in. Hmm? And that is what is called being human. And a simple, but and so very important. Okay, अब तो पापा पीटेंगे मुझे. Isn't it simple यार? मैं तुम्हें कितना रॉकेट साइंस बताऊं, लेकिन ये अगर फंडामेंटल्स ऑफ लाइफ आर नॉट क्लियर, राइट, तो फिर क्या मतलब है? लॉट ऑफ पीपल आर स्ट्रेस्ड फॉर वर्क, स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ वर्क. अग्रीड, काम है, सब कुछ है, रोजी रोटी है. एक ने बोला सर पीपी पापी पेट. पापी पेट, ये पेट कब से पापी हो गया? बट ठीक है, पापी पेट का सवाल है, बट स्टिल आई फील, यू नो, यू गॉट टू रिफ्लेक्ट इन बिटवीन. ऐसे बीइंग ह्यूमन का तो कुछ रिफ्लेक्शंस आने चाहिए. सो काम कर रहे हो, स्ट्रेस्ड हो, अग्री, टेक अ ब्रेक, स्ट्रेच योर हैंड्स, स्माइल, लाफ, कम बैक. बी ह्यूमन ना. बिकॉज काम करने तो नहीं आए थे यार इस दुनिया. जीने आए थे ना. वो जीना तुम्हारा कहीं रह गया. क्या कह रही है स्नेहल? योर स्माइल इज योर ओन क्रिएशन, इट शैल नेवर डिपेंड ऑन एनीथिंग और एनीथिंग. एब्सोल्युटली. तो स्माइल कर दो, कर दो. चलो, दिस बीइंग फर्स्ट थिंग अबाउट बीइंग ह्यूमन. कैसा रहा ये सिंपल सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ बीइंग ह्यूमन? हाउ वाज इट? एंड आई थिंक यही जो चाहिए लाइफ में यार. कितना ज्ञान, कितना नॉलेज लोगे, ये अद्भुत, अद्भुत रहा. सर मास्टर स्ट्रोक है ये. आई शाबाश. The more you meet people with a smile, the more business they will give to you, isn't it? The more business they will give to you. Go for a meeting with a prospective customer with a smile. I greet the smile. Make the person feel relaxed. Make the person smile a lot more. So everywhere, I feel. मुझे याद है, बड़ा अच्छा सा इंसिडेंट है ये मेरी लाइफ का. 2003, 2000, आई थिंक 2007 की बात है. Absolutely, it's the basics which are missing in life. 2007 की बात है. And I remember it because my son Gautam was 3.5 years of age. तो मेरे पास एक टू व्हीलर था, मे बी एक्टिवा और सम होंडा एक्टिवा वाज देयर. एंड माय सन गौतम, उसको मैंने आगे खड़ा किया. एंड होता ना, on a Sunday, on a holiday, your father wants to play some games with the child. So उसके लिए मैंने कहा let me go and buy a cricket bat. And I used to stay somewhere near Mukund Nagar. And there, थोड़ा सा आगे जाके एक कोने में there were some people who would sell bats. तो मुझे वो ऑफिस में जाते जाते दिखता था. तो मैंने बिठाया गौतम को आगे टू व्हीलर में. आई टुक टू व्हीलर टुवर्ड्स दैट प्लेस. एंड आई पार्क द टू व्हीलर. And it was just 5 feet from the road. The road is here, and then I parked my two wheeler on the road, and I went to buy the bat. And it was as if the traffic constable with his towing van was waiting कि somebody will park the two wheeler. शायद उसका सेटअप होगा उसके साथ बैट बेचने वाले के साथ. तेरे यहाँ रुकेंगे लोग और मैं उनका चालान काट दूंगा. तो वो मैं उतर के गया और आई वाज जस्ट होल्डिंग द बैट कि हाँ ये कितने का है. तभी देखा तो वो टू व्हीलर वो टोइंग वैन को लेके आ गया. एंड दे आई रैन. आई सेड हेलो, मैं इधर ही हूँ, क्यों उठा रहे हो मेरे टू व्हीलर को? एंड देन कांस्टेबल केम एंड आई सेड सर मैं तो अभी 10 सेकंड नहीं हुए. ही सेज 200 rupees fine. I said सर बच्चे को लेकर 2 बैट लेने गया और 200 rupees fine. And I said 3-4 more statements. Sir, abhi to aaya, 200 rupees fine. And after 5 attempts of mine, he had the same dialogue, 200 rupees fine. And one thing which I noticed about him was that every time he would say 200 rupees fine, he would smile. उसने आगे कुछ नहीं बोला, पीछे कुछ नहीं बोला.
₹200 फाइन और स्माइल। एंड वो स्माइल हर बार ₹200 बोलता, स्माइल करता था। पांचवी बार मैंने भी स्माइल किया, मैंने कहा यार सर आपकी स्माइल बड़े मजेदार है, यार ₹200 लेके मानोगे? कहते ₹200 एंड फाइन। And I still remember that traffic constable. I paid the fine. I smiled and I paid the fine. तो ये हद तक स्माइल जो है ना काम कर सकता है. It can make people pay, even though they didn't want to pay, but it can make people pay with a fine, as a fine with a smile. तो क्या क्या चीजें पॉसिबल है? हम्म, हाँ जी, yes, it can increase your face value. हम्म, you changed the idea of how a small thing can have a great impact. Oh yes, small things only have a great impact. अगर लगता नहीं ना कि कभी छोटी चीजें can have a big impact, then you have not slept with a mosquito. Huh? And then you'll understand how a small thing can make a big difference. That small, tiny thing can take away your sleep. So in the same way, the smile side. Hmm? अभी मैंने सिर्फ पहला एस्पेक्ट बताया ऑफ बीइंग ह्यूमन. देयर आर सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स मैं जो बताऊंगा तुम्हें तुम्हें समझ में आएगा यार ये तो है लाइफ. अपन क्या कर रहे हैं? सो रिक्वेस्ट यू to go from gear 0 to gear 2. See if you can smile more. See if you can laugh more. See if you can create your own circle of people who would love to be with you because you laugh and you smile more. See if you can connect with people who laugh more and can you hold them, in high esteem. यार, I'm blessed to have people who laugh around. But हम किन लोगों को ढूंढते हैं? हम उनको ढूंढते हैं जो हमारी जैसी सोच रखें या फिर जो हमें कंफर्टेबल कराएं या हम उन लोगों के साथ रहना चाहते हैं. यू नो तो मुझे लगता है कि फाइंड पीपल विद whom यू कैन एटलीस्ट हैव अ लाफ्टर वंस अ डे. नहीं तो जाना पड़ेगा लाफ्टर क्लब में, बता रहा हूँ. जब तुम अपनी जिंदगी में रोज नहीं हंसोगे तो फिर सुबह सुबह मजबूरी में जाके लाफ्टर क्लब में जाके हंसोगे. नॉट दैट इट्स बैड, बट अगर दिन भर में हंस रहे होते तो फिर उसकी क्या जरूरत थी? राइट है ना? किसानों को तो कभी जरूरत नहीं पड़ी जिम की. They never had gyms in their lives. They never went for any physical fitness sessions because मेहनत दिन भर करते थे ना. दिन भर मेहनत करते थे तो दिन भर फिजिकली एक्टिव रहते थे. तो इसलिए उनको जिम की जरूरत नहीं पड़ी. जिनका फिजिकल, जैसे जो लोग आईटी में है, जिनका काम है बैठ के काम करना, जो शॉप में है दुकान में है तो वो बैठा हुआ है गल्ले पे, तो उनको आया समझ में कि यार ये तो फिजिकल एक्टिविटी हो नहीं रही है, तो दे हैड टू गो टू द जिम. इन द सेम वे, जो दिन भर स्माइल नहीं कर रहे हैं, लाफ नहीं कर रहे हैं, दे विल हैव टू गो टू द लाफ्टर क्लब. नॉट दैट इट्स बैड, बट इफ यू कैन laugh on your own, it will be so good ना. नेचुरल लाफ्टर आएगा. आया पकड़ में जी. चलिए, तो क्या करोगे अभी? आई हैव 3-4 मोर थिंग्स टू शेयर विद यू. वो आपसे मैं नेक्स्ट एचएम शेयर करूंगा. आज ये सिंपल चीज ही फॉर यू, दो इट इज सिंपल बट यस, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. ठीक है? एंड आई विल शेयर विद यू व्हाट इज बीइंग ह्यूमन. नेक्स्ट एचएम में एक दो पॉइंट्स और शेयर करूंगा. But let us be human. Let us empower ourselves. Let's make ourselves much more powerful, stronger, better than what we are. And on this note, I want to invite you for Family HM. अगर आप पुणे में हो, and if you can come to Pune, come for Family Happy Minds. एक बढ़िया छोटा सा प्रोग्राम ले रहा हूँ on. It's not a program. It's a contribution from my side to make families come together on a common platform. Can you be with your child? Can you be with your spouse? Can you be with your parents together? Can you say to yourself that आने वाला साल जो है 2024 का, we will make the best year of our life. तो उसके लिए एक फैमिली के लिए अलाइनमेंट सेशन कर रहा हूं. कम with the family so that together you can or set some objectives together. You can set some beautiful agenda for as a family, कि एज अ फैमिली हम ये 24-24 को, सॉरी 20-24 को हम अच्छा कैसे जिए टुगेदर एज अ फैमिली. कैन वी मेक some beautiful objectives? Can we make some beautiful pathways for ourselves where we together can help each other to become a better version of ourselves? So that's what Family HM is all about. तो अगर आप पुणे में हो, आइए, कुछ हंगामा करते हैं, साथ हंसते हैं, बच्चों के साथ हंसते हैं, पेरेंट्स साथ हंसते हैं, and we will be more human as we will be together. So
Gee, can we view it online? Oh, yes, you can view it online. You can go to YouTube and you can also be there. So love you, Naresh. God bless you. Sir, start program, Laugh 360. Thank you, Rajesh. करना पड़ेगा. Let's have a Laugh 360 program. एक करते हैं. And in fact, I had a program named Gudgudi. बहुत पहले मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया गुदगुदी कि यार प्रोग्राम में आओ और हंसते रहो इतना लाफ्टर करेंगे. इट विल बी विल काइंड ऑफ उन दिनों ये स्टैंड अप का चक्कर नहीं होता था. 2003-4 की बात है. वी नेवर हैड समथिंग कॉल्ड अ स्टैंड अप. आजकल स्टैंड अप बड़े हो गए. तो दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब. दे आर मेकिंग द वर्ल्ड लाफ. इट्स सो वंडरफुल that people have taken up to this profession. Also profession बन गया है to make people laugh. It's so awesome. तो दिन भर में तुम देखते हो कुछ ना कुछ. तो see some great guys, stand up comedians. बड़ा अच्छा मजा आता है उनको देखने में. The way they crack jokes, the way they make people, they talk about people. बड़ा अच्छा रहता है. So you can also make it a part of your daily intake. Maybe a 5 minute, 10 minute of a stand up comedian. So it'll be wonderful. ठीक है जी. So, love you, Naresh. God bless you. See you on next